encourage and impart knowledge about patents, copyrights, and other IPRs to IGNOU students and innovators, and thus empower them to work on their innovative ideas and initiatives. The Patent Facilitation Unit organizes talks and virtual sessions for innovative students of IGNOU to make them aware of the importance of patents in innovation and startup and various other related aspects. So, in this context, one of the the present awareness session is being conducted, and the title of today's session is IPR Economic Significance to Nation, Unveiling the Keystone of Innovation and Growth. We have with us today Dr. Munish Kumar, Regional Director, RC Pune. We welcome you, sir, to this session. Doctor Munish Kumar has more than 18 years of research and teaching experience in biochemistry and molecular biology in national and international institutes and universities. He has also received Raman Fellowship from the Department of Cancer Biology, Cleveland Clinic, Ohio, USA. He has many academic achievements to his credit, and time will fall short if I start telling about all those achievements right now. And he has more than 70 publications, including peer reviewed papers and chapters. And most of all, he has 4 patents in his name. And on the occasion of World Intellectual Property Rights Day 2024 last month, he was one of the faculty members to be felicitated. We are pleased to have you with us for this session today, sir. So now I would invite Dr. Manish Kumar for his talk. Thank you, Dr. Sujata, for your kind word. I feel privileged to be a part of this particular innovative thing which Dr. Om Prakash ji has started, Director NCIDE. I also thank Honorable Vice Chancellor Professor Nageshwar Rao, Dr. Mahapatra ji, and Director RSD, Dr. Umesh Chand Pandey ji. Uh, in fact, before starting the talk, let me just give you a brief introduction about myself, although Dr. Sujata has covered most of the part, in fact. Before joining this institute 4 months back, I worked as an professor at University of Allahabad. I joined here in February. In fact, after joining this institute, in fact, as a regional director at RC Pune, I already filed 2 patents, in fact, which was previous work which my student usually do that. At present, in fact, the idea about patents thing is that, like the slide I'm going to share with you. The topic is on IPR, intellectual property right, economic significance to the nation, unraveling the keystone of innovation and growth. As a biochemist, what I can say for the golden age period for any human being is from 20 to 40. After 40, biologically we are old. As an I would say that, like, my head of department, Professor Rizvi, he works on aging, in fact. And what we say that after 40 or 45, we are biologically old, in fact. But because of new technology, new patents, new research in biomedical research, we have preluded and we have extended our lifespan, in fact. For example, if I say that, like, many of you must be a little bit astonished, like till 1940, the average lifespan of Indian was only 35 years. You can check the database on the WHO. But because of new idea, new startup, new research in medical field, the number of our lifespan has been, now it's around 70 plus, in fact. And that is because of our use of our brain, because of use of our intellectual thing which human has at most among all the organisms which is present on the earth, in fact. So this particular slide I'm showing about the Apple network income in the company fiscal year from the year 2005 to 2023. You see, 2005,
1.33, this was the billion US dollar, the number of income they made. But slowly, gradually, as Apple have got the copyrights and patents in different in mobile technology, you can see by 2021 it's almost now there is the table is almost similar, in fact. So new innovation is required here, in fact. See, what actually is patent? Generally we say that patent is a statutory right to the inventor or the applicant by the government for which invention which is either or new or a product is there. So here, in fact, a lot of you must have heard about Nokia. Nokia was the the prime pioneer in the mobile technology, but slowly they said they went back, in fact. And the next slide I'm showing you about the Samsung Electronics. You can see that compared to the Apple, the the net revenue which they make in billion US dollar or trillion the krone which currency they have, you can see that they are quite better. But in 2023, Excuse me, sir. Sorry, but the slides are not moving. slides are not We moving. are on the first slide only, so you may uh, stop sharing and share your slides again. Share your screen again. Okay, let me just do it. Let me just do it. Let me just share it again. And please select the entire window. If Yeah, I selected entire window, entire screen. No, entire screen, yeah, entire screen. and then where it is. I don't know. There is some issue once we shifted from the old building to new building. Still, there's some with the computer. Just call Joshi ji. Just wait. Give me a time. Let me just Yes, fix. sir. Entire screen window. Just is it moving now? Hello. Oops. Yes, sir, it is visible. You would want to go ahead and do the slideshow, maybe press F11 Okay. and then it will. Okay. Okay. Just. Perfect, sir. Yes. Yes. Is it visible now? Slides are moving. Yes, yes, sir. Okay, thank you so much. So yeah, I was talking about you see that the Apple network income which they made because of new innovative idea, new things they have. It is around 96 point or 100 billion US dollar. But you can see that in similarly for Samsung, in fact, they are here, in fact. But let me tell you about Nokia also. Nokia, in fact, they went back in this mobile technology. But one of my friend, he's a a senior CEO of that Nokia, and he said like we are not back. In fact, they are working on. They actually Nokia is they work on this artificial intelligence, and basically they are working on this. To on bullet trains and other thing, how we can artificially manage so that there can be zero incident prone things, something like that. So you can see that like how technology, in fact, make revenue for the country, in fact. So as an Indian, like we are 150 crore people, in fact. So we need to think a little bit different, and hopefully because of government policy in last 10 year, in fact, or you can say that after 2005, in fact, there was a little bit change in the patent law, in fact. So and before 2000 July 2007, in fact,
patent was to be filled in present, or you need to go to the patent office and then you need to file. But after 20th July 2007, everything is online, and we are doing so in that. So see, once we talk about patent, in fact, so I told you it's a statutory right of the inventor, which is being given for a limited period of time. In fact, limited period of time is based on like your invention. Maximum period is 20 years, and after that it go for public. In fact, you must be heard about generic drugs and other things. And let me tell you, like once you are filing a patent, you need to disclose some sufficient disclosure which about that the thing which you have done in the patent is novel. Novel means it should be new, and the 3 points are generally considered in patent. The first is that like it should be novel. Second is like you discovered a new thing which has never been known by any other person. Second thing. And third is that it should be innovative, or it should be have some industrial applications, in fact. And there are different terminologies which are being basically used, in fact, for patents. In fact, for example, depending on which region, which territory you belong, in fact, so it's basically sometimes you also say that patent is a territorial rights. In fact, for example, if somebody is from Kolkata or nearby state, or from all over India, Kolkata patent office gives there. Similarly, Delhi is there, Chennai is there, Mumbai is there. Different regions, they give a right to the inventor for their new innovation. And remember, once you're doing something new, innovative, you should add a knowledge to the society. Or if you're just like you have seen that like the different movies has come into, there is sequel of that thing. For example, let me just quote the example of Bahubali 1, 2, 3, or something like that. So there should be like, once you are doing some patent, you should add knowledge or add something to the existing thing, and it should be innovative thing. So here, in fact, let me tell you about to the all youngsters, in fact, who are attending this lecture. In fact, this is the global intellectual property right. Royalty management market must reach around 30 billion by 2030. This is the estimate, in fact. And let me tell you about the US is still is on the top, in fact, in the getting the intellectual property right management. It's around 2.7 billion in the year 20. But China is second economic forecast to reach around 3.9 billion by the year 2030. This is trailing compound annual growth rate of around 16.6 over the analysis period of 2022 to 2030. See how maximum number of patents are being filed now by China, and they are doing thing. Similarly, there are other countries like who have like noteworthy geographic market, Japan, Canada, and they are still doing things. So some European nations also, like Germany and other things, they are in this thing. So IPR's revenue has increased by 80% on a year, raising to this one 564 crore. And Government of India efforts of the music industry must remain to be achieved for these representing things. And in fact, every university, every research institution must do a lot of things because in future basically depend on the new startups and patents idea which are floated around the world. In fact. So here, let me tell you about this is the the slipping number which we have. In fact, patents and limitations score, which India has globally, we have 1% out of 7, 1 out of 7. Copyright and limitations 1.47. Trademarks and limitation, we are good in this year, is 2.75. Trade secret and market access, still we are lacking in this field, and I hope Government of India will put a lot of effort, and they will encourage institutions, universities and other things, so that things can be made. Membership and rectification of international treaties, we are still lacking here in this thing. So here, how India start up rest of the world. See here the scores which we have around, we come around 30 or 29 rank all over, when compared to the world economy. In fact, US is the first, UK, Germany, France, Singapore. Still we are lagging behind in this thing. So, but the last question. Yeah, one small question from the last slide. So this is across the industries, is it, sir? The data. Yes.
yeah, across the world, in fact, whatever, basically on IPR innovation. All the industries. I mean, the patent could be filed for any industry, right? Let it Yes, be pharma, it's right? it's Any all innovation. any Any, new idea, any new patent, in any either it can be biological field or in any field, in fact, physics, chemistry, whatever. but sir, I mean, I just out of curiosity, the kind of entrepreneurs that are coming up in India, I mean, and the kind of things that are happening with the startup culture being in Thai, we are still behind, right? Yeah, So the yeah. number. Number is quite, because but the thing is from last 10 year, in fact, you can see that like in IPR 5 worldwide, we are quite, we came second, in fact, but still, you can see that like last time some an expert from patent office, he visited NCDI office, and we number of means filing by 2022 is it's around 2 lakhs, sorry, 2 lakhs around people are filing, something like that. But this number, ideas should be, because see, number of patents are filed, but how much it is executed, how much it is has industrial application, that matters, in fact. So we are quite behind in that thing, in fact. So मतलब अगर ये जो 1.5 लाख लगभग नंबर है, Ji. so we are not sure that how many of them are even approved or how many of them are actually executed on the field. These No. are approved ones, right? Yeah, these are already like published, in fact, Okay. and slowly it takes a long time, in fact. Like once you file a patent, it takes at least 2 year to at least 5 year for the things, because there is a process. Once you file the patent, then you need to give your abstract, your preamble, other thing idea, that will be published, and then it will be published worldwide. People will check it out. If there is a repetition or something, somebody will against to that, then the patent officer will check it out, and then he will ask to amend something, or to rectify something, what novelty is there. Then again, the patent, once it is accepted worldwide, it will be granted, published. That is the fourth step. Long process, right? आधे Yes. तो इसलिए छट जाते होंगे सर. Yeah, but the thing is that, thing is that, as an scientist, as an thing, once you file the patent, you earlier there was a belief among the researcher, like it is a long process, but you can publish the same thing in a paper or something, in a journal also. But Okay, okay. so there is no, earlier, like 3-4 years back, in fact, people used to I worked in CSIR lab, which is in Lucknow, in fact. So we had that issue, in fact. But now, once you have idea, you publish the thing, you have published your thing to the patent office, that will be intimate, because they need to compare, is there any other people who have filed earlier or not. But you can simultaneously publish your things in the any journal also, so no need to worry So about that. is there a validation process out there also for that? Yes, yes. Okay, okay. So this is something like, so for a youngster, I told you, let me just give you a small story about, because I'm a teacher, in fact. I always say something. I think any of you have heard about Barry Marshall. He received Nobel Prize in the year 2002. Anyone? Barry Marshall. He's an Australian researcher, doctor, scientist. Might have heard his name, sir, but Yeah, can't let, right. let me tell you about the story about that guy. In fact, Barry Marshall, he joined in Australia, one medical college, in fact, and he's an gastroenterologist, in fact. And then he started, because basically once you do internship or in doctor profession, you need to work almost like in a week 100 hours or more than something like that, in fact. So he was working on, because there was a belief, in fact, like this stomach ulcer is basically caused by hydrochloric acid, which is present in our stomach, in fact. And in stomach, the pHs are less than around 1 or something like that. So everybody has a belief, because this HCl causes corrosive nature, and then it leads to stomach ulcer, and finally peptic ulcer or something like that, any cancer. So Barry Marshall, he was working on, he made a
the number of patients who visited the gastroenterology department in Australia, in fact. Then he made a culture of that. And then in the year 90s, in fact, 1990s, he sent his paper to one, esteemed journal, stating that this peptic ulcer is, or peptic stomach cancer is because of Helicobacter pylori. And immediately that paper got rejected, and he sent it again to another journal, again rejected, and everybody in the world, they were laughing against him. Barry Marshall, what the heck you are doing? This is not right. In fact, you are against this thing. And let me tell you, that guy was little bit, so much determined about the research, about his idea, which he did. Later on, after 1 year, he made a quotation like, I know I am right, but I don't know why the world is not believing me. And he drank a whole culture of, this, sorry, what happened? A whole culture of the Helicobacter pylori, and slowly he developed this peptic ulcer. Thank God, because at that time the antibiotics and other things were there, and he cured, in fact. And for this particular innovation or new idea which he floated to the world, in fact, he received Nobel Prize in the field of physiology in the year 2002, and it actually changed. And recently, I think in 2017 or 18, in fact, I had several communication with him. In fact, I asked for some research with him, and then he said, like, I'm not interested now in that, in fact. And now he's much more inclined in doing on this, gut flora, in fact, because our, for example, Indian tradition, once we talk about, we say that the gut flora, whatever our thinking is basically on the number of, microbes which are present in our intestine, and that actually define our attitude, that actually define how intellectual things are there. So this thing was there in Indian culture, but somehow we have lost our path, in fact. So people are coming up and they are working on this thing, like prebiotic, probiotic, other things which are coming up in this thing. This slide again. Sir, there is a request if we could be bilingual. Yeah, that if we could follow, have some issue with English. Okay. हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके चलेगा सर, थोड़ा ओके, ठीक, कोई इशू नहीं, कोई। ये देखिए, अगर बोलते हैं ना सर, जैसे मतलब जब तक आप प्रूव नहीं हो जाते तब तक दुनिया आप पे हंसेगी, वही है। People will laugh at you and until you are proved. सोक्रेटिस के बारे में आपने सुना ही होगा, उन्होंने क्या किया था, आपने सबको पता ही होगा। तो और भी लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, but thing is that patents health. So you have personally interacted with this person, sir? Yeah, because let me tell you, like, I worked with Nobel laureate Sidney Altman in Yale University from 2006 to 2010, in fact, and उनको नोबेल प्राइज मिला था कैटालिटिक आरएनए का। और आज के डेट में देखा जाए, बेसिकली मैं कैंसर के फील्ड में काम करता हूँ, और अभी कुछ दिन के लिए जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है कि थोड़ा सा हमें लोग लगा कि कुछ इग्नू के लिए केयर करना, बिकॉज 35 लाख बच्चे करीब इस यूनिवर्सिटी में हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको करने का मौका मिलता है। तो कुछ हम कर लें इसके लिए, तो मेरा ही इंटेंशन है, और देखते हैं क्या कर पाते हैं, अच्छा रहेगा सब कुछ। Gut health, this is a serious issue, and I think there are so many companies that are coming up, जैसे and a lot of things are happening because even the basic Yakult जो हम लोग पीते हैं, there's a lot of sugar content in that, right? Even if it is sold as, and a lot of things are happening right now. People have started reading labels, and this young culture, I think they, through of course influencers and all of this, through other marketing techniques and other, people are more towards in making informed decisions for anything. Even before eating or consuming anything, they're making very informed choices. They're reading labels, and there's a lot of things that are happening from the young group that is working out there and influencing people on that. So, but the thing is that this is just for those people who are educated, in fact. But you think, like, what about the rural people, rural background people? आप देखिए सर, मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है, I think you must have heard of this Hemant. He's working for Boston, I think. He's a consultant with them.
So he has, see, of course sir, कोई भी change आने के लिए बहुत time लगेगा, but then I think the kind of things that they are doing, if so यहाँ पे इंडिया में सर कॉपी करना बहुत आसान होता है, तो कोई अगर आप अगर कुछ बोले ना सर, if you are communicating only in a French language, maybe if most of the people in India do not understand, somebody will be there to convert and communicate it in Hindi, just आपका कॉपी मार के बता देंगे, भले ही आपको क्रेडिट भी नहीं देंगे, वैसा भी होगा, but then it is communicated and it is transferred, the knowledge transfer is done, क्योंकि कंटेंट मिल जाता है ना सर, वैसा हो जाता है। लेकिन ये चीजें हैं, ये आप लोगों को करना, बिकॉज 1 से 2, 2 से 4, ये जो चेन रिएक्शन स्टार्ट करना ये जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो पड़े हुए, हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि जैसे कि कैसे हम लोग चीजें काम कर रहे हैं बेसिकली। देखिए कल मेरी डॉक्टर सुजाता जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि कैसे फाइल करना है। देखिए लिटरेचर सब कुछ आप एक बार आप डालेंगे कि हाउ टू फाइल पेटेंट, एवरीथिंग विल बी देयर, बट द मेन थिंग इज दैट कि कैसे आप अपने आइडिया को इनकलकेट करेंगे, कैसे लोगों को बताएंगे, ये जरूरी है। अब जब तक आपको हिस्ट्री और नंबर्स क्या हैं, कैसे हम अपने आप को कर पाएंगे, तो हमने सोचा 2047 तक डेवलप नेशन अगर होना है, तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मुनीश और नॉट बिकॉज ऑफ एनी पर्सन, इट्स ऑल बिकॉज होलिस्टिक अप्रोच होना जरूरी है, सबको जानना जरूरी है, सबको कुछ करना जरूरी है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। अब देखिए ये नंबर्स हम बता रहे हैं, जो आपने किसी ने पूछा कि ये ओवरऑल नंबर्स के बारे में हमने जो बताया, अब इसके बारे में अगर आप देखेंगे जो रिसर्च का अगर देखा जाए, हेल्थ साइंसेज में, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड अदर्स में भी आप देखोगे तो ये चीजें नंबर्स आपको दिखेंगे। और देखिए कर देंगे प्लीज, F11 दबा दीजिए सर, F11 यस, F11 एक मिनट, नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट मैं फिर से स्किप कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। एक मिनट, जोशी जी को मैं फोन करता हूँ। एक मिनट देखते हैं सर, क्लिक ऑन स्लाइड शो पे क्लिक कीजिए सर। मैम सॉरी, दोबारा से शेयर कीजिए अपनी स्क्रीन, तब शायद हो जाएगा। स्किप भी नहीं हो रहा, स्टॉप शेयरिंग एंड देन शेयर अगेन। Yeah, below there is slideshow. You can move to the slide. Try moving to the slideshow option. अब ठीक है मैम? तो राइट, अब तो दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है सर, दिख तो रहा है। ठीक है। So you can see that like whatever area of research you are doing, आप बहुत सारे उससे एरिया से आए हो होंगे। केमिस्ट्री हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, मटेरियल साइंस हुआ, फिजिक्स हुआ, बायोलॉजिकल साइंस हुआ, सोशल साइंस। सी द नंबर, हेल्थ साइंसेज में अगर हम देखेंगे तो वी आर क्वाइट अभी भी हम बिहाइंड है परसेंटेज, अगर कंपेयरिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम या जापान और या फिर यूरोपियन यूनियन या यूनाइटेड स्टेट्स में देखा जाए। लेकिन हम कुछ अच्छी चीज़ में है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ लोग जानते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वी आर स्टिल गुड, इनफैक्ट हम इसमें अच्छा कर रहे हैं। आईपीआर और इनोवेशंस में आप देख सकते हैं इसमें एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ। सोशल साइंस में थोड़ा पीछे हैं हम हैं, और इसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं। और इनफैक्ट जो लोग इस पर काम करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव बहुत सारे ट्राइबल पीपल हैं और भी सारे वैसी चीज़ें हैं, हम इस पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं इस एरिया पे। आप देखिए यूनाइटेड किंगडम या फिर यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका को देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स को, दे आर डूइंग गुड इन फैक्ट। बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंस में कुछ अच्छा कर रहे हैं, मीन्स इनफैक्ट फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स में हमने देखा है, तो हमारा नंबर अच्छा हुआ इसमें बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेज में देखा जाए, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ न्यू आइडिया रिसर्च इसमें हम कर रहे हैं। फिजिक्स में हम काफ़ी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जापान और ये इंडिया काफ़ी इस पर अच्छा कर रहे हैं। बेसिकली मटेरियल साइंस में भी हम ठीक हैं, लेकिन हाँ द मेन फोकस जो हमें करना है हेल्थ साइंसेस, जो अभी भी हम लैकिंग बिहाइंड है। सोशल साइंसेज में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग में भी हम ठीक हैं, लेकिन थोड़ा और बेहतर करने के, लेकिन बट स्टिल बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज एंड अदर थिंग हम ये कुछ अच्छा कर रहे हैं। दिस इज द नंबर जो आपको जानने की ज़रूरत है, और जिस एरिया में भी आप काम कर रहे हैं, वट एवर एरिया यू चूजिंग, यू कैन वर्क ऑन दैट इन फैक्ट। So here you see that same the percentage I have made, अगर देखा ये थोड़ा नंबर आप ये चेंज गलती से हो गया यूनाइटेड स्टेट्स में, या फिर ये जो नंबर्स हैं बेसिकली उसी का परसेंटेज हम दिखा रहे हैं आपको। तो अगर हम देखें इंजीनियरिंग में हम अच्छे हैं, चाइना और ये दोनों
अच्छा कर रहे हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में भी हम इसमें टॉप पे हैं। फिज़िक्स में भी अच्छा कर रहे हैं हम, और रेस्ट ऑफ द जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनसे भी अच्छा कर रहे हैं। केमिस्ट्री में भी ठीक ही है, लेकिन सोशल साइंस में जो लैकिंग है इस पे थोड़ा-सा हमें काम करने की आवश्यकता है। मटेरियल साइंस में भी ठीक है, हेल्थ साइंसेज़ में हमने बताया है कि थोड़ा-सा और ज़रूरत है इस पे, गवर्नमेंट को भी और आम पब्लिक को भी इस पे काम करें। सी अगर देखा जाए तो एक मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको कि इंडियन रिसर्चर जो है 17 मिलियन जो पब्लिश करते हैं, जो काम करते हैं ओपन एक्सेस 2020, और काफ़ी नंबर बढ़ रहा है इनफैक्ट। बट मैं एज एन रिसर्चर, एज एन साइंटिस्ट, एज ए टीचर, मैं ये आपसे हमेशा रिकमेंड करूँगा, ट्राई टू पब्लिश योर थिंग इन इंडियन जर्नल्स इनफैक्ट। बट क्या है, पता नहीं अभी भी क्या है कि बट अभी कुछ 1-2 सालों में चीज़ें चेंज हुई, सिनेरियो चेंज हुई है। सो लेट अस प्रमोट आवर ओन जर्नल्स, ओन रिसर्च जो भी है इंडिया में हो, तो हमें काफ़ी सी जो अगर MPDI और भी कुछ हैं जो अगर आप देखेंगे, तो ये इतना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं सिर्फ इन पब्लिशर्स को पैसा देके। MDPI हुआ, स्प्रिंगर नेचर्स, एल्सेवियर है, ये इतना पैसा, यही चीज़ अगर हम इतना अपने इंडिया कंटेस्ट में करेंगे, तो क्योंकि एक बार चीज़ें पब्लिश हो गई तो पब्लिशर का सब कुछ हो गया। तो हमें इस पे सोचना है, लाइक जनरल करंट साइंस हाईलाइट करता, लेकिन बट उसको और भी वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत है, और उम्मीद है कि हम इस पे ज़्यादा चीज़ें करें, और हमें अपना जो थिंकिंग है कि वो बाहर का अच्छा, ये नहीं, हमें एक जगह कहीं एक स्टोन लगाना है, उसके आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें अगर देखेंगे, इस पे हम काम कर सकते हैं। 7 मिलियन जो है, अगर आर्टिकल प्रोसेसिंग फीस हम लोग देते थे, लाइफ एंड अर्थ साइंस में इतना है, मल्टीडिसिप्लिनरी में सी दिस हुपिंग नंबर, इनफैक्ट वी आर एक्सपेंडिंग कर रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए अपना जो हम रिसर्च करते हैं, और ज़्यादातर लोग उसको पे करना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को, या फिर जो पर्सन है रिसर्च में उसको पे करना। इसको ये पैसा बचा के व्हाई नॉट वी प्रमोट आवर ओन जर्नल्स एंड डू द रिसर्च हियर, इनफैक्ट वी हैव अ क्वाइट लॉन्ग इनफैक्ट। सिमिलरली अगर देखा जाए तो ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल साइंस, बिजनेस, इसमें भी इतना पैसा ये सब खर्च हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा इस पे सोचना है। 80%, 81% ऑफ जो होते हैं, लेकिन एक चीज़ और अच्छी बात है, एज एन इंडियन हम थोड़ा सा बहुत ही कूजी एंड चूजी होते हैं। हम 81% जो आर्टिफिशियल जो प्रोसेसिंग फीस है आर्टिकल का जो आप पब्लिश करते हैं, उसको हम नहीं देते हैं या फिर रिक्वेस्ट कर लेते हैं, तो ये चीज़ें होता है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को भी सोचना है, और लेट प्रमोट आवर ओन, बिकॉज जैसे वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, एक शहर एक उत्पाद, जैसे यूपी में बात करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हमें इस पे करना है। सो द मेन थिंग इज दैट वी नीड टू इनकरेज आवर रिसर्चर टू पब्लिश इंडियन जर्नल, एंड वी शुड मेक पॉलिसीज टू सपोर्ट इट। इसके लिए करने की ज़रूरत है, देन ओनली। हाँ, लेकिन हाँ, 2-3 सालों में ये चीज़ें चेंज आई हैं। मैं बात कर रहा हूँ नैनो मेडिसिन के, थोड़ा मेरा एक्सपर्ट है, और मैं होपफुली जब मैं ज्वाइन किया हूँ इग्नू में, अभी क्या है कि मेरे पास अगर देखा जाए तो 3-4 रिसर्च स्टूडेंट हमारे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिसर्च से मैं थोड़ा इधर आया हूँ। तो उम्मीद है कि अगले 2 हफ्ते में हम कैसे पेटेंट फाइल करेंगे, क्या एक स्प्रिंगर से हमने बात की है, तो 18 चैप्टर हैं ऑलरेडी, हमने लिख लिया है। होपफुली 1-2 महीने में वो अमेज़न पे आ जाएगी, तो कॉपी जब मिलेगी तो मैं जो लोग भी हैं यहाँ पे, तो मैं भेजूँगा कि कैसे पेटेंट करते हैं। मैं अपने व्यूज़, आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो मेरे करीब 12 पेटेंट हो चुके हैं फाइनल, और करीब 2-3 कम्युनिकेटेड है। और थिंग इज़ दैट कि कुछ करना नहीं होता, प्लीज़ कुछ सोचना, अलग हट के सोचना, जो भी आपके पास आइडिया है, बिकॉज जो आपके पास आइडिया है वो मैं नहीं समझ सकता हूँ, एंड वही चीज़ आपके अंदर जो इग्निशन की ज़रूरत है, अगर आप ऐसा करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें होगी। नैनो मेडिसिन जो है, इंडिया इसमें काफ़ी लीडिंग है, पायनियर है। पिछले 10 साल में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ जो हमारे पास रिसर्च है। तो इसमें मार्केट अगर देखा जाए 210 मिलियन के आसपास इतना है मार्केट वैल्यू, ये बाई 2032 तक ये जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हल्दी इज जनरली, हम अगर बात करते हैं तो उसमें मेन कंपोनेंट जो काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी कैंसर का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और सब सारी चीज़ें जो देखा गया हल्दी में, तो मेन कंपोनेंट इज कुर्कुमिन, जिसको बोलते हैं 7-8 डीऑक्सी कुर्कुमिन काम करता है। तो एज एन हल्दी में देखा जाए तो हल्दी में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन जो मेन जो
कंपाउंड उसमें पाया जाता है जो ये चीज़ काम करता है, उस पर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, देखिए इंडिया में अगर देखा जाए तो मोस्टली अगर बिकॉज ऑफ जेनेटिक अगर देखा जाए तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स करीब करीब सबको सबके हर घर में है बेसिकली, दैट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक। तो अक्सर आप देखेंगे कि इंडिया में जो हमारे पॉपुलेशन जो ग्रो ओल्ड कर रही है उनको पेट की समस्या हमेशा होती है, या फिर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी फूड हैबिट अगर हम और कंट्री से कंपेयर करें तो हमारा जो खाने का तरीका है वो काफ़ी अलग हट के है, तला भुना ये सब खाने की ज़रूरत। बट जैसे किसी ने कहा, किसी बच्चे ने कहा कि अब क्या है कि चीज़ें बदल रही हैं, हम अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो बट क्या है कि अब गट फ्लोरा को तो एकाएक बदला नहीं जा सकता, बिकॉज मैंने पहले बताया ना कि हम हमारा ब्रेन काम उसी से करता है जो हमारे माइक्रोब्स, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जो माइक्रोब्स हमारे गट फ्लोरा, इंटेस्टाइन, वो क्या सोचते हैं, वो डिसाइड करता है कि हम क्या बनते हैं। तो इस पे काम करना, इसलिए कहा जाता है कि अच्छा खाएंगे तो अच्छा कुछ करेंगे, अच्छा कुछ दुनिया के लिए कर पाएंगे। तो ये नैनो मेडिसिन एक टेक्नोलॉजी जो यूज किया जा रहा है कि जो पर्टिकुलर मेडिसिन को एक नैनो लेवल पे यूज करके जिस सेल को जरूरत वहां पर डिलीवर करना। तो जैसे कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम आज के डेट में देखा जाए तो इंडिया में अराउंड अगर देखा जाए 30-40% लोग दे हैव बोन डिसऑर्डर्स अगर देखा जाए। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे माइक्रोब जो उनको बायो ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर डाइजेस्ट करेंगे, वो कैपेबिलिटी नहीं उनके अंदर है, इसीलिए ये चीजें हो रहा है। तो ये ड्रग डिलीवरी सेगमेंट ये है, आप देखें ये ऑन्कोलॉजी सेगमेंट जो इतना अमाउंट, तो हमें इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। और ये देखिए आपके गांव में चले जाएंगे, वहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं जो जिनको एक्सप्लोर करना है। आप ऐसा अगर कह दीजिए कि पौधा काम करता है इसके लिए, तो नोबडी इज गोइंग टू लिसन योर। आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपको एचपीएलसी और टेक्नोलॉजी से जो एक्टिव कंपाउंड, जो एक्टिव रोल है उस पेड़ में है, उसको निकाल के बता के करना पड़ेगा। ये जो ग्लोबल हम बता रहे हैं सिनेरियो है देखा जाए तो, और अगर देखा जाए सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, सिद्धा इज अनदर थिंग्स व्हिच हैव बीन ऑलरेडी बीन यूज्ड, ट्रेडिशनल नॉलेज हम लोग यूज करते रहे, लेकिन समहाउ इन लास्ट 1000 ईयर हम ये सब भूल गए, पता नहीं क्या जो भी रीजन रहा हो। तो ये चीजें अभी भी हमें फोकस करने की जरूरत है। अगर देखा जाए सेज तिरुमूलर जो है पहली बुक इन्होंने एक्सप्लेन किया था नैनो मेडिसिन का, जो नैनो साइज की बात करते हैं, और जनरली 10⁻⁹ की स्केल में नापा जाता है। तो ये चीजें हमें अभी भी काम करने की जरूरत है। और हर्बल मिनरल फॉर्मुलेशन जो है, इस पे जो बेसिकली इनको नैनो साइज में करना, बिकॉज नैनो साइज में क्या है कि सेल इजिली एक्सेस कर ले, बिकॉज सी सेल एज ए देखा जाए उसके बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना ये सेल के ऊपर डिसाइड करता है। लेकिन नैनो साइज का रहता है तो इजिली चीजें वो चली जाती हैं। तो ये कैसे किया जाता है, बहुत सारे स्मार्ट पिल्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ आ रहे हैं। अभी हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारा लास्ट काम चल रहा है कि हम लोग एक पैच बना रहे हैं जिसमें इंसुलिन को जो ओल्ड एज है, बिकॉज जिनको टाइप 1 डायबिटीज या सीवियर डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको क्या एवरी डे नीड टू टेक इंसुलिन बाय इंजेक्शंस। तो उस पर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, अभी भी उस पर कुछ क्वेरीज आई हैं और अभी चल रहा है। तो हम पैच बना दिए कि बुजुर्ग आदमी है, बिकॉज वंस यू ग्रो ओल्ड जो आपकी डर्मिस है, एपिडर्मिस है, बहुत वीक हो जाता है, इजिली ब्लीडिंग कर लेता है। तो एक पैच बना के उसमें इंसुलिन का हमने कोट दे रखा है, और धीरे धीरे रिसाव करके काम करेगा। इस पे हम लोग भी कुछ काम कर रहे हैं। और भी काम चीजें आप देखेंगे, डिजिटल मेडिसिन की बात करते हैं, और सेंसर्स जो यूज किया जाए, सिजोफ्रेनिया पेशेंट और जो भी जिनको ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, इस पे भी नैनो पार्ट जो मेडिसिन आ रहे हैं काम कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें किए हैं कुछ। अभी जैसे हम बता रहे हैं कि लास्ट टाइम मुझे याद है कि द पेटेंट विच वी गॉट ऑन सेरोलॉजिकल पाइपेट, एक हमने पाइपेट बनाया था। जब भी आप कोई पेटेंट के बारे में सोचते हैं तो याद रखिए कि आपको चीज़ों डिस्क्लोज नहीं करना, आपको चीज़ों को अपने तक सीमित रखना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा, आप उसका एक मॉडल बना दीजिए, उसको अपने नोटबुक पे लिखिए, और फिर जब सब कुछ आप श्योर शॉट हो जाएगा हाँ ये सब ठीक है, देन आप उसको चीज़ों को अपने नियरेस्ट जो पेटेंट ऑफिस होगी वहाँ पे ऑनलाइन जाके आप उसको फाइल करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, मैंने बताया कि 12-13 पेटेंट हमने टोटल किया, उसमें से 9 ऑलरेडी ग्रांट हो चुके हैं।
आज की डेट में मैं क्या है, पहले मैं क्या करता था कि टू सेव मनी इनफैक्ट, तो क्या होता था कि उसमें लॉयर की फीस हो जाती थी, करीब 4-5 हज़ार रुपये ले लेता था। तो अब मैं वो काम नहीं करता हूँ। अब क्या करता हूँ, जो भी मेरे पास आइडियाज़ होती है मैं लिखता हूँ, उसको बनाता हूँ, उसको करके रखता हूँ, और सिंपली जो पेटेंट लॉयर्स मिल जाएँगे आपको, उनको दे दीजिए, दे आर गोइंग टू फाइट। आप क्योंकि बिकॉज़ सी मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं सिडनी अल्टमैन के साथ काम करता था, तो वहाँ पे क्या होता था कि उस लैब में अ, आइडिया होना चाहिए नया। नया आइडिया होगा तभी वो आपको वो एक्सेल करेंगे, प्रमोट करेंगे। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बात करते हैं कि आपको डीएनए आइसोलेट करना है, डीएनए किसी सेल से आइसोलेट करना है। तो हम लोग देयर आर वेज़ बाय व्हिच यू कैन आइसोलेट डीएनए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ तेज़ होती है, किट होती है, कुछ ट्रेडिशनल मेथड होता है। लेकिन हमारे जो बॉस थे वो हमेशा एक कहते थे, "प्लीज़ मुनीश डोंट डू दैट, आपने आप मत करो। आप अपनी आइडिया रखो, ये सेल है, इनको दे दो किसी कंपनी को, दे विल डू इट फॉर दैट। थिंक न्यू।" तो ऐसा सोचना है। जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे, भाई मतलब कि आज हो सकता है शुरू में पैसे कम थे तो दिक्कत होती थी। जैसे आपके पास पैसा आ जाए, ग्रांट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फंडिंग करती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो आपको फंड करेंगे, और उस पे फोकस करना है कि आपका गोल क्या है, कि आपको क्या बनाना है। तो मैं एक छोटा सा बता रहा है कि एक्सरे इमेज ऑफ टॉप शोज ड्रग डिलीवरी कैप्सूल इंटेस्टाइन का जो ये बताया गया है। ये मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एक कहानी और बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आपने वारबर्ग के बारे में सुना होगा। वारबर्ग इफेक्ट, एक वारबर्ग को नोबेल प्राइज मिला था इनफैक्ट, और वो एक जर्मनी में एक लैब है जहाँ पे उसको कार्बोहाइड्रेट लैबोरेटरी बोला जाता है। वहाँ पे अगर देखा जाए तो आज की डेट में 8 लोगों को साइमल्टेनियसली हर साल या हर 2 साल पे उनको नोबेल प्राइज मिले थे। उसमें ही वारबर्ग साहब थे। वारबर्ग साहब ने 1932 में ही बता दिया कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं, दे टेक मोर ऑक्सीजन बिकॉज दे नीड टू रेप्लिकेट। उनको बार बार डिवाइड होने की जरूरत पड़ती है। जब बार बार डिवाइड होने की जरूरत पड़ेगी तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता, कह लीजिए कि शुरू में, या फिर ग्लूकोज की इंटेक की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो ग्लूकोज की इंटेक ज्यादा पड़ेगी तो उनका सिर्फ एक काम होता है कैंसर सेल का, कि वो डिवाइड करते रहे और अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते रहे। तो वारबर्ग साहब ने 1932 में ही एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया था जिससे ये पता चल जाता था कि कौन सा सेल नॉर्मल है, कौन सा कैंसर सेल है। लेट मी टेल यू, 1932-35 के बाद ऑलमोस्ट 70 ईयर तक उनके रिसर्च को कोई फोकस नहीं किया है, कोई किसी ने नहीं ध्यान दिया। 2005 में जाके फिर से उनके जो हाइपोथेसिस थे, उनके जो भी चीज़ उन्होंने डिस्कवर किया, फिर से रीडिस्कवर हुआ चीज़ें। और आज की डेट में देखा जाए तो इस पे काफ़ी लोग काम करते हैं। अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं कीमोथेरेपी में यूज़ किया जाता है, आइदर इट कैन बी ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, या कोई भी कैंसर यूज़ किया तो पहली ड्रग जो यूज़ बनाया गया था इट वाज एंटी एंजियोजेनेसिस। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होता है, कैंसरस सेल जो है वो ज्यादा उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है शुरू में। तो वो क्या करते हैं कि ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करते हैं ज्यादा अपने तरफ, सो दैट मोर न्यूट्रिएंट कैन बी डिलीवर्ड टू दैट पर्टिकुलर एरिया एंड दे कैन इंक्रीज देयर पॉपुलेशन इनफैक्ट। तो पहली बार फॉल्कमैन ने 1971 में एक एंटी एंजियोजेनेसिस की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई। ये समझ लीजिए कि 1972 में डिस्कवर किया, उसको एफडीए ने जो है, जो फूड एंड जो ड्रग अथॉरिटी ऑफ अमेरिका है, उसको 2005 में जाकर उसको माना। तो ये चीजें क्या होता है, जब भी कोई चीज आप काम करते हैं, जल्दी से कोई चीज गवर्नमेंट या आपका वो नहीं मानेगा, लेकिन हाँ जब वो चीजें, हाँ उस ड्रग की वजह से 1972 में जो फॉकमैन ने डिस्कवर किया था, पहले क्या होता था, इंटेस्टाइनल कैंसर काफी होता था लोगों में, आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिकन कंटेस्ट। लेकिन पिछले अगर देखा जाए 1990 से लेके आज की डेट में 2024 तक देखा जाए, तो जो पहले जो मॉर्टेलिटी रेट काफी हुआ करती थी, वो काफी कम कर दिया उस पर्टिकुलर ड्रग ने। वही उसी के नाम पे सुनिति निब या सोफानिब, डिफरेंट जेनरिक नेम यूज किया गया, सेम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर डिफरेंट कैंसर्स के लिए आजकल की डेट में यूज किया जाता है। मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट इन इंडिया अगर देखा जाए, वी आर स्टिल हम देखा जाए तो हम जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं हमसे ज़्यादा ये, और ये 41% ग्रोथ देखने को मिला है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ न्यू इनोवेशन। लेकिन बट साथ में क्या है कि जो बड़ी बड़ी जो मशीनरीज हैं, हम इंपोर्ट में काफ़ी पैसा खर्च कर दे रहे हैं ये इस चीज़ पे। तो इवन लाइक ग्लूकोमीटर भी हम क्या कर रहे हैं कि अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना और नेशन से। तो हमें ऐसा कुछ सोचना है, जैसे एमआरआई मशीन बनी हुई है, तो एमआरआई मशीन पे आपको कुछ और इनोवेशन थोड़ा ऐड ऑन करेंगे, जो
जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है या एग्जिस्टिंग चीज़ें जो काम कर रहा है उस पर क्या एड ऑन करते हैं, सिटी स्कैनर है, अल्ट्रासाउंड, इस पे थोड़ा अगर हम काम करेंगे तो हमें थोड़ा सा हम काफ़ी रेवेन्यू बचा लेंगे और साथ में हम चीज़ें और जनरेट करेंगे अपने गवर्नमेंट के लिए इनफैक्ट। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि देखिए इतना करोड़ हमने फाइनेंशियल 22 ईयर में इसके लिए चाइना से ये किया। तो 5 टॉप मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट जो हम करते हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी, सिंगापुर, नीदरलैंड। नीदरलैंड मैंने बताया ना कि यहीं पे नोकिया का वो है पूरा, और अभी भी हम उस पे रिलाई करते हैं। तो लेकिन अभी कुछ चीज़ें पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, गवर्नमेंट फ्रेंडली हो रही है तो रिसर्च के प्रति, तो ये चीज़ें हम अब इम्प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली अभी आप देखेंगे कोवैक्सीन, आपने अभी न्यूज़ में सुना भी होगा, लेकिन कोवैक्सीन का अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। और आपको पता है आईसीएमआर कलेक्टेड 171 करोड़ रॉयल्टी फॉर कोवैक्सीन सेल गवर्नमेंट में से। एक छोटी सी चीज़ें हमने कोविड के समय ये किया और ये हमें मिलने को मिला। सी हमेशा याद रखिए कि आइडिया जब भी कुछ होता है, जैसे अगर हमने क्या बताया पहले में कि एप्पल भले पायनियर अच्छा एप्पल, लेकिन सैमसंग अभी भी पूरे मार्केट को मोबाइल में कैप्चर कर रखा। तो नया इनोवेशन, नया चीज़ें जो होता है उसमें किया जाता है। हर्बल मार्केट ये एरिया है जो हम बेसिकली फोकस करते हैं। बार बार लोगों से कहते हैं कि इंडिया में अभी भी लोग रिलाई करते हैं। इनफैक्ट आपको पता है स्टीव जॉब्स को कोलन पैनक्रियाटिक कैंसर था और वो इंडिया में भी आए थे हर्बल ट्रीटमेंट के लिए, काफ़ी दिन रुके थे इनफैक्ट इस चीज़ के लिए। बिकॉज अभी भी क्या है कि ये चीज़ें जो आपके इंडिजिनस नॉलेज है, लोकल लोग जो जानते हैं, वहाँ पे अगर आप जानेंगे तो ये चीज़ काम कर सकते हो। और ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 10.6 के आपसे रिची काफ़ी अच्छा नंबर है। और जैसे यूरोपियन रीजन जो हमारे लार्जली जो नेचुरल इंग्रेडिएंट जो ब्यूटी में, पर्सनल्स और इस सब पे ये चीज़ें, आपने मॉर्जिला चीज़ के बारे में सुना होगा। मॉर्जिला चीज़ के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाता कहाँ से। अभी 2-3 साल पहले पता चला कि मॉर्जिला चीज़ एक्चुअली हरियाणा में एक गांव है, वहीं से सारा वो जो है दूध वो इंपोर्ट करते हैं और उसी को ये करते हैं। उसका जो टेस्ट होता है सबसे वर्ल्ड एवरीबॉडी लाइक दैट। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। सिमिलरली आपने बासमती राइस और ये सारे केसेस देखा, नीम के ऊपर पेटेंट के बारे में बात हुआ, बाद में केस किया हमने, लेकिन उन लोग भी चालाक थे, उन्होंने क्या किया, नाम बदल दिया, बासमती की जगह पे उन्होंने टैक्समती और सब सारे चीज़ें कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट जो हर्बल इंडस्ट्रीज या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो इसमें बेयर एजी है, हर्बल न्यूट्रिशन लिमिटेड है, ये सब इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। और ये इस पे बट लेकिन क्या है कि ये टॉक्सिटी जो हम बता रहे हैं, टॉक्सिसिटी के बारे में थोड़ा सा काम करने की जरूरत है जितने भी हर्बल मेडिसिन, बिकॉज स्टिल लॉट ऑफ रिसर्च नीड टू बी डन ऑन दिस जो ट्रेडिशनल या आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिसिन विच वी हैव, हमें इस पे जरूरत करने की काम है। साइज ऑफ आयुष इंडस्ट्रीज जो है 18.1 बिलियन इतना ये हुआ है। और बाय 20 और भी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, ये हर्बल चीज़ें, ये इस पे थोड़ा सा हमें काम करने की ज़रूरत है। और होपफुली जो ट्रेडिशनल नॉलेज है आप अपने आसपास एरिया में देखिए और उसको लेके आइडिया लाइए और उसको राइट अप करिए। हाँ, डिस्क्लोज किसी से मत करिए, बाद में जब आप उसको फाइल करते हैं या कुछ करते हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडियन हर्बल मेडिसिन जो अगर देखा, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, ये है, ट्राइबल पीपल से मिलिए, और भी जो फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, ये सब सारा चीज़ें थोड़ा सा हमें लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल लाइक वैक्सीन, हम वैक्सीन में लीडर हुए आफ्टर कोविड इनफैक्ट, एंड थैंक गॉड। इनफैक्ट जो रिसर्चर जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बगल में हमारे जहाँ सेंटर खुला वहाँ से 5 किलोमीटर पे, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग ऑन दैट इनफैक्ट। तो पॉजिटिव वे में सोचना है, अच्छा सोचना है कि कुछ नया चीज़ दुनिया के लिए कर पाएँ, यही उद्देश्य होना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है प्रमोट करने के लिए इंडिजिनियस मेडिसिन के लिए। हमने काफ़ी कंट्री से साइन किया है MOU, जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन, होम्योपैथिक जो फॉरेन नेशन से किया है। ये कोलैबोरेटिव एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन काफ़ी पिछले 10 सालों में हमने किया है। और भी चीज़ें हम इस पे काम कर रहे हैं और इसीलिए थोड़ा सा मैं एज एन कैंसर बायोलॉजिस्ट, हम देखा जाए तो हम थोड़ा सा पिछले 1-2 साल से हम फोकस कर रहे हैं बेसिकली आयुष प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, कि कैसे उसको हम उसको नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करके उसको ड्रग डिलीवरी करें। बिकॉज जब तक वो ड्रग या दवा जाएगी नहीं तो कैसे काम करता है, इस पर बहुत ज़रूरी काम करने की ज़रूरत है।
और ये अगर आप देखेंगे मिनिस्टर ऑफ आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा के बारे में कैसे, बिकॉज ये सर्बानंद सोनोवाल जो है आसाम से बिलोंग करते हैं और ये काफ़ी इस पे प्रमोट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ICMR काफ़ी फंडिंग नॉर्थ ईस्ट में करती है, बिकॉज स्टिल देयर आर मेनी ट्रेडिशनल प्लांट जिसके बारे में पता नहीं है, उस पर लोग काम करने रहे हैं। दिस गाय इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इनका आप देख सकते हैं फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स में इन्होंने कितना ह्यूज मार्केट सेटअप कर रखा है पतंजलि ग्रुप, बाबा रामदेव जी ने। हाँ, बट थिंग इज दैट स्टिल व्हाई दिस, अभी देखा होगा आपने कुछ केसेस देखा, लेकिन क्या है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाए सी हमें हमेशा देखिए, एप्पल का अगर मोबाइल हम बात करते हैं स्टिल वी से दैट कि भाई ये एप्पल का तो ठीक होगा, तो ये चीज़ें हम अपने जो क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा इसमें ये पीछे रह गए, इसके लिए इनको काम करने की ज़रूरत है। सिमिलरली जो है NSDI जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एरिया जो है, अपॉर्चुनिटी देखना, प्लांट्स के कौन कौन से, अशोक हुआ, एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये आपने देखा होगा लोग यूज़ करते हैं, यू ट्राइन टॉनिक या मैसेज टेक्निक्स के काम आता है, और भी सारी चीज़ें हैं, ये हम सब जानते हैं। अगर आप किसी गांव वाले बुजुर्ग से पूछेंगे तो लोग सब जानते हैं, लेकिन बट उसको कहीं रिटर्न में नहीं लिखा हुआ। तो लेकिन बट ये है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन मार्केट साइज ये भी इंक्रीज कर रहा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो 20% के इस पे देखा गया है, ये सब सारा चीज़ हम काम कर सकते हैं इस पे, ये एरिया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम काफ़ी अच्छे हैं, हम काफ़ी कहा जाए तो जो एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, दवाएं यहाँ से 130 बिलियन तक बाई 2030 तक ये रीच करने की ये है। और हम देखा जाए तो 50% अफ्रीकन रिक्वायरमेंट की जितनी भी जेनरिक दवाएं हम यहाँ पे देते हैं, और भी जो US और ये जितने भी दवाई हैं, मैं US 4-5 साल रहा हूँ, तो वहाँ पे हम जब वहाँ के मेडिसिन स्टोर पे जाते थे तो काफ़ी दवाई यहाँ की जो होती हैं, जो बिकॉज चीप होती हैं, लेबर चीप है, बिकॉज हम उसको प्रोसेसिंग, तो काफ़ी सस्ती चीज़ें, ये डिमांड काफ़ी चीज़ बढ़ा है। ग्लोबल वैक्सीन का डिमांड हम पूरा कर रहे हैं, ग्लोबल लीडर बन रहे हैं, DPT, BCG और मिजल्स, ये बेसिकली देखा 70% ऑफ WHO वैक्सीन अगर देखा जाए, ये सारा दैट्स गुड न्यूज इनफैक्ट फॉर अस, हम सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया एज अ होल पूरे वर्ल्ड का देखा 70% हम WHO को पूरी वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। और ये इस पर और भी काम करने की जरूरत है, बल्क ड्रग मेडिसिन और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, और ये सब सारी चीज़ें हम दैट विल एक्चुअली लीड टू इंक्रीज और ओवरऑल जो हम काम आगे रिसर्च में करेंगे। तो हमने बात बताया ना कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में पता करना, और ये अभी स्टिल लैकिंग, बिकॉज सी अभी भी इस पे काफ़ी एरिया लैकिंग है और हम इस पे काम कर सकते हैं। तो ये इसीलिए फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर इनफैक्ट हमने इस पे थोड़ा सा 2-3 साल से हम इस पे फोकस कर रहे हैं अपने रिसर्च को। और भी चीज़ें हैं, जेनरिक ड्रग्स जो देखा जाए, हमने ऑलरेडी वही रिपीटेटिंग है, और कैसे ये चीज़ें हम बढ़ा सकते हैं वही स्लाइड्स हैं। और ये एस्टिमेट डिपेंडेंस ऑन चाइना जो ये कम हुआ है, CSIR जो है और मेक इन इंडिया प्रोग्राम पे, इस पे ज़्यादा काम हम लोग कर रहे हैं, और ये 60 अब कुछ कम हुआ है, बिकॉज हम अपना चीज़ें गवर्नमेंट फोकस कर, रिसर्चर्स कम कर रहे हैं। और नाउ अब ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ इट्स टाइम टू फॉर अस टू फोकस ऑन पेटेंटेबल ड्रग्स, कॉपीराइट, हर्बल फॉर्मेशन। सी कॉपीराइट्स भी होती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मेरी इकलौती एक कॉपीराइट है। बेसिकली हमने एक हर्बल फॉर्मुलेशन का वो कंसेप्ट दिया था, कुछ कैंसर सेल लाइन पे चेक किया था, और पहली कॉपीराइट मुझे अपनी यूनिवर्सिटी मिली है। मेनी न्यू ट्रेडमार्क्स एंड अदर थिंग्स जो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। इंडियन जर्नल्स ये देखा जाए तो कुछ एक एग्जांपल हम बताते हैं कि जब कोविड का केस बढ़ा था तो एंडोमेथासिन एक मिरेकल ड्रग इसको रखा गया था, लेकिन ये इंडिया में डिस्कवर किया गया, लेकिन बट फॉरेन वाले इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किए। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा काम किया। सम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में मेरा एक पब्लिकेशन चेन्नई के एक ग्रुप से हमने किया था, तो इसमें ये काम हम लोगों ने किया था। और ये ओवरऑल थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, लेकिन बट होपफुली कि कुछ अच्छा कर पाए हम लोग। ये थोड़ा सा ये मैं ऐसे बताया था कि इस पर भी थोड़ा मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं अपने रिसर्च के बारे में कर रहा हूँ, लेकिन आप मैं स्किप कर रहा हूँ, स्लाइड टाइम में है। हाँ, AI इन मेडिसिन, इस पर भी बिकॉज हमने क्या बताया कि लाइक इंडिया इज पायनियर इन जो कहा जाए कंप्यूटर साइंस में देखा जाए या फिर और सब में देखा जाए, तो हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पे ज़्यादा काम कर सकते हैं।
प्रिडिक्टिव एनालिसिस फॉर अर्ली डायग्नोसिस, इस पे भी काम मैं करता हूँ। 2-3 पेपर मेरे पब्लिश हुए जो अर्ली डिटेक्शन गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए हमने इस पे काम किया है, बेसिकली गैंगेटिक रीजन पे। और एनहांसिंग डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, बेसिकली जो MRI, CT स्कैन, पैट है, अदर थिंग्स अबिंग हम इस पे काम कर सकते हैं। ड्रग डिस्कवरी एंड डिलीवरी पे काफ़ी काम हो रहा है। एवरी इंस्टीट्यूट, अगर देखेंगे तो वहाँ पे AI बेस्ड यूज़ किया जा रहा है, तो जिसके वजह से जो बायोलॉजिकल थिंग जो है सिस्टम जो यूज़ करते थे, माइस और रैट जो यूज़ करते थे, रैबिट, उसको कम कर दिया गया। रोबोटिक सर्जरी आपने न्यूज़ में देखा भी है कि इस वेल एस्टेब्लिश थिंग, कैसे लोग वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट एंड टेलीमेडिसिन यूज कर रहे हैं। ये सारे एरियाज हैं जो आपको, बट द थिंग इज जब भी आप काम करते हैं तो आपको, जो भी आप काम करते हैं, आपको इथिकली मतलब यूज कैसे करना है चीज़ों को, वो जरूरी ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ये इंडस्ट्री मैं देख रहा हूँ काफ़ी फ्लरिश की है पिछले, कहा जाए तो 10 सालों में, और काफ़ी जो फ्लावर जो लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, फ्लोरिकल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो GDP के लिए ये कर रहा है हमारे। So you can say that like some of the states जो इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। तो अभी नया कोर्स ऑलरेडी इग्नू ने स्टार्ट किया है कि कैसे एग्रीकल्चर को, मैनेजमेंट को अच्छा किया जाए, रिसेंटली है। तो उसमें आपको ये सब सारी चीज़ें इनकलकेट करेंगे, लोग बताएंगे कि कैसे हम, बिकॉज स्टिल जो नंबर ऑफ जो लैंड हमारे पास है वर्ल्ड के अगर और एरिया से देखा जाए तो हम कल्टीवेशन लैंड सबसे ज़्यादा हमारे पास इंडिया में है एज कम्पेयर टू चाइना या और इसे देखा जाए, तो ये हम इस पे काम कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे रोज़ हुआ, ट्यूबर रोज़ हुआ, ग्लैड्स, ये सब सारे चीज़ें इसको किया जा रहा है, काम कल्टीवेशन किया जाता है। एक्सपोर्ट देख रहे हैं कितना काफ़ी बढ़ा हुआ है अगर देखा जाए तो, ग्लोबल नीड भी इसका बढ़ा हुआ है, और यूरोपियन कंट्रीज और US में काफ़ी चीज़ें इसको इसकी मांग है। इनिशिएटिव टेकन बाय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से देखा जाए, जो फ्लोरिकल्चर के टैक्स पे थोड़ा सा उनको ये करना, न्यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्लोरिकल्चर कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट करना जरूरी है। AEGs, एग्री एग्रो जोन्स के ऊपर थोड़ा सा इसके इंक्रीज डेवलपमेंट करने की जरूरत। हॉर्टिकल्चर मिशन अभी भी नॉर्थ ईस्ट और हिमालय रीजन पे नहीं है, बिकॉज स्टिल कुछ ऐसे हर्ब्स पाए जाते हैं जो इस पे काम करने की ज़रूरत है। और यही सब मैं आपको IPR और जो भी चीज़ें अगर आपको देखना है, कुछ भी फाइल करना है, मैं मेरा जो पर्सनल ईमेल ID है मैं शेयर कर दूंगा अभी, munish@kp@gmail.com। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आइडिया हो, लेकिन याद रखिए जो नॉबेलिटी हो किसी के साथ डिस्क्लोज मत करिए, बिकॉज आपको याद है कि एक केस हुआ था जब DNA हेलिक्स का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, तो फ्रैंकलिन से जो है वाटसन क्रिक ने ये आइडिया ले ली थी और उन्होंने उसका नाम भी नहीं दिया। तो ये याद रखिए कि कोई भी बड़ी डिस्कवरी करिए तो आप कॉन्शियस एफर्ट लगाइए, उसको लिखिए, अपने पास क्या आइडिया, क्या ऐड कर सकता है, ये इस पर ज़्यादा जोर देना है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से फिर से ये कहूँगा कि लिटरेचर को पढ़िए और देखिए कि क्या डॉक्यूमेंट, क्या SOP है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज देयर आर पीपल इन पेटेंट ऑफिस। जब मैं पहला 2 पेटेंट 2019-2020 में फाइल किया था, बिकॉज एट दैट टाइम मुझे याद है कि हमारे यूनिवर्सिटी में 1-2 पेटेंट हुआ करते थे, वो भी ग्रांट नहीं हो पाए थे। तो और थैंक गॉड कि 2020 में थोड़ा सा मुझे मौका मिला, मैं घर पे पढ़ा रहता था, तो कुछ नए इनोवेशन जो भी आया मेरे पास, तो मैं उसको सोचा, उसको एग्जीक्यूट किया और किया। तो आज की डेट में देखा जाए तो अभी भी काम कर रहा हूँ, होपफुली कुछ अच्छा कर पाए ह्यूमैनिटी के लिए, यही रोल होना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी क्वाइटली। अगर कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन हो तो यू आर फ्री टू आस्क नाउ प्लीज। All the best for your research, sir, and thank you so much for this session. Thank you, sir. Such a wonderful and interesting, informative lecture we had. So now, if you have any queries, you can ask him. Anyone has any query? Because कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, आप पूछिए मेरे से। कुछ करना है तो देखिए, ह्यूमन है तो भाई कुछ ह्यूमैनिटीज़ के लिए करना ज़रूरी है। और एज एन हम लोग
काफ़ी इस पे अगर हम देखा जाए, कभी मैं और सुजाता जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं अपने रिसर्च के बारे में कभी बताऊँ कैंसर के बारे में क्या है। और बिकॉज़ सी अवेयरनेस एंड नॉलेज एक्चुअली इससे हम काफ़ी रेवेन्यू बचा लेंगे हेल्थ साइंस के लिए। तो हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्वेरी। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर इन फैक्ट। तो इस पे हमको सजग रहना है, आगे काम करना। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम आज बड़ा गर्व करते हैं कि हम यंगेस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड, लेकिन आज से 10-20 साल बाद हम ओल्डेस्ट भी रहेंगे। तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान देना हमें ज़रूरी है। और होपफुली जितने लोग भी हैं, मंजू जी हैं, संदीप जी हैं, धनंजय जी हैं, ये चीज़ आइडिया फ्लोट करिए लोगों में और थोड़ा हेल्थ के प्रति ध्यान दीजिए। आप अगर अभी एक कहावत है ना कि अगर आपका हेल्थ है तो एवरीथिंग यू हैव इन द वर्ल्ड इन फैक्ट। और चीज़ तो आप अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ एक बार गया तो फिर नहीं वापस आएगा। तो इस पे थोड़ा प्लीज़ ध्यान दीजिए। एनीवन और कुछ किसी को? अरुण जी। सत्य न्याय, सर आई हैव अ क्वेश्चन। एक मिनट अर्जुन जी। सर ये सत्यनारायण न्यायमूर्ति गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि आपके पास आईटी फील्ड में कोई इनोवेशन का आइडिया। ये हाँ। बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। सत्यनारायण जी, क्या होता है ना कि आपकी एक बार में आप एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने कहा ना कि हम कैंसर पे काम करते हैं, तो सब मिला के लास्ट में मेरा जो कितने भी चैनल्स होंगे लास्ट में जाके वहीं जाता है। आईटी में अभी तक ऐसा अच्छा अभी हमने कुछ सोचा नहीं। हाँ, आपके पास कुछ आइडिया हो, मैं आपको हमेशा उसको अप्रिशिएट करूँगा। कुछ आपको लगता है, आप अपने आइडियाज़ को अपने पास रखिए, कुछ उसमें ऐड ऑन करना होगा, कुछ होगा, ज़रूरत होगी, तो आप मुझे मेल करिए। मेरा नंबर मैं मैम को दे दूँगा, आप मुझे फ़ोन कभी भी कर सकते हैं, मैं आप उसमें हेल्प करूँगा। हाँ जी, अरुण जी आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी प्लीज। तो ये सर, जैसे नैनो मेडिसिन के बारे में आपने बताया, इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेन आपने किया, ठीक है सर। लेकिन आज के डेट में एआई रोबोटिकल भी नैनो मेडिसिन में आपका वर्किंग कर रही है आज के डेट में। जैसे जे अगर कैंसर के कुछ केसेस थे जहाँ पे नैनो जो रोबोटिकल चीजें हो रही है वो बॉडी के अंदर इंस्टॉल करने के बाद उसे भी वर्किंग किया जा रहा है, तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज हो तो सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखिए, लेट मी टेल यू, मैं अगर देखा जाए 1980s बॉर्न हम हैं, ठीक है, 80s के आसपास, ठीक है। हम लोग के समय में क्या होता था कि हम लोग जब काम करते थे तो पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी यू आर फ्रॉम बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, तो हम लोग क्या करते थे, काफ़ी कॉकरोच हुए, काफ़ी एक आ जाए कि अर्थवर्म हुआ, काफ़ी माउस हुआ, काफ़ी मोलास्केस को मार देते थे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जो जितने भी मेडिकल फील्ड में देखेंगे तो हमें उस बिकॉज ऑफ जो फ्रॉग्स को हम लोग डाइसेक्ट करते थे तो काफ़ी चीज़ों को मार देते थे। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 1990s तक। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो वही हूबहू वर्चुअल जिसको कहा जाए, हम उसको लैब में जनरेट करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए वर्चुअल नॉलेज जिसको बोलते हैं, जो स्टिमुलेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले यूज़ किया जाता था ये यूएस आर्मी यूज़ करती थी। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को देखिए, आर्म्स एंड एम्युनिशन जब आप फायर करते हैं तो स्टिमुलेटर्स आर बीइंग यूज्ड, तो सेम हूबहू ऐसे होता है। आज की डेट में फ्रॉम लास्ट 2000 के आसपास सेम चीज़ आप जो है कि एक उदाहरण मैं स्वरूप देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर इंसुलिन का डिस्कवरी है वो देखा जाए, 1980s में पहली बार बिकॉज ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब आया, तो हमने क्या किया कि उस पर्टिकुलर इंसुलिन को बैक्टीरिया में क्लोन कर दिया और ओवरनाइट हम इंसुलिन का ढेर सारा प्रोडक्शन कर लेते थे। लेकिन आपको पता है 1970s 80s में क्या होता था कि अगर 100 शिप को मारा जाता था या 50 शिप जो भेड़ को मारा जाता था, जो उनके पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता था तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। तो वही चीज़ अगर हम देखा जाए, जैसे हम माइक्रोब्स पे काम कर रहे हैं, तो माइक्रोब्स में अगर जैसे ड्रोसोफिला एक जो फ्रूट फ्लाई जो आप देखे होंगे जो फलों पे आती है, उसका अगर जेनेटिक्स में काम किया जाए तो उसको ईजिली हम यही चीज़ें पहले मतलब 2000 से लेके 2015-16 तक, लेकिन अभी सेम चीज़ें हम उसको एआई बेस्ड में कर लिए कि कैसे क्या स्टिमुलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, सेल्स लाइन लिया जाता है, इसको किया जाता है। एआई के बेस्ड में मेरा अभी इतना नॉलेज नहीं है और होपफुली फिर कभी मौका मिलेगा तो सुजाता जी देंगी तो कभी मैं कुछ और पढ़ के आऊँगा तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। अरुण जी, होप यू आप सैटिस्फाई हैं मेरे आंसर से? यस सर। जी, एक लास्ट क्वेश्चन था सर, मैं पूछ सकता हूँ? जी प्लीज यू आर फ्री टू आस्क। सर जैसे इनोवेशन के बारे में बता रहे थे कि नया आइडिया के बारे में, तो अभी हाल फिलहाल में इसके पहले 2023 में इनोवेशन स्टार्टअप जो
इग्नू का जो फाउंडेशन डे था उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे करेंट टाइम में, ठीक है। तो वहाँ पे अवार्ड फंक्शन सब कुछ हुआ, और पार्टिसिपेट करने के दौरान तो मेरा अभी की करेंट टाइम क्वेश्चन ये है कि इनोवेशन आइडिया तो आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है, प्रोटोटाइप बन गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन हाउ टू एक्सप्लोर दिस, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आइडिया बता दीजिए। देखिए क्या है कि आपको देखिए हम बार बार ये चीजें कर दी, कोई चीज जो हो रहा है, ठीक है, इनोवेशन क्या बोलते हैं, कुछ नया चीज आप लेके आए जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो बेसिकली। तो जैसे मैं बताना चाहूँगा, लास्ट टाइम भी मैं एक बार स्टार्टअप का मैं एक प्रोजेक्ट था मेरे पास, 2019 से लेकर 2021 तक मैं चलाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो पहला जब मीटिंग की गई थी, दिल्ली में बुलाई गई थी, तो उस वक्त मोदी जी आए हुए थे। तो मोदी जी ने एक बच्चे को बड़ा अप्रिशिएट किया, मैं उनकी आइडिया को अभी भी लाइक करता हूँ। उन्होंने क्या बताया था कि उनको वो कहानी बता रहे थे, एक बच्चा आया नया इनोवेशन लेके, तो उसने क्या किया था, कप में ही एक छोटा सा स्पेस बना के उसमें बिस्किट रखने का दे दिया, ठीक है। तो वो इनोवेशन है। तो इनोवेशन कभी भी ये एक चीज याद रखिए, आपको जो भी आप सोचते हैं, हमने आपको बेरी मार्शल का एग्जांपल लिया, ठीक है, कि वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो आप खुद सोचिए, आपको कोई कह दे कि आप ये माइक्रो पी लीजिए, आप पी पाएंगे? नहीं पिएंगे ना। तो आपको हमेशा अपने आइडिया को प्रति क्या कहा जाए कि कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ठीक है। और जो भी आप करते हैं उसको नोटबुक में लिखिए प्लीज, और जब आप लिखेंगे करेंगे और पढ़ने की कोशिश करिए, जो भी आपका चीज, जैसे आप एआई बेस्ड या इस पे करना चाहते हैं तो जस्ट रीड द लिटरेचर। वो भी लिटरेचर कहाँ से पढ़ना है, जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, जो भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं, ये नहीं कि आप ऐसे कहीं से कुछ पढ़ लिया तो दिक्कतें आएंगी। तो ऑलवेज ट्राई टू, और ये कौन हेल्प कर पाएगा? आपका टीचर का रोल क्या होता है? ऑलवेज जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ एमएससी और पीएचडी को, तो मैं यही बताता हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया हूँ, आप लोग ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, आपको मोटिवेट इंस्पायर करने के लिए आया हूँ। हमेशा याद रखिए, टीचर जो होता है ऑलवेज ये होता है 20% आप एक्टिविटी दीजिए, 80% प्रोडक्टिविटी, उस पर काम करिए। मैं जो भी बता रहा हूँ, आपके अपने आइडिया, भाई संदीप जी के अपने होंगे, धनंजय जी के अपने होंगे, सत्यम जी के होंगे, अपने अरुण, आपको आइडिया है तो आपके अंदर कैसे वो जिज्ञासा आएगी कि कैसे मैं सर्च करूं। जब वो उस दिन आपको ये पता चलेगा तो आप उस एरिया में आप लीडर हो जाएंगे। यस सर, थैंक यू सो मच। और है आइडिया हो तो उसकी नीड को भी रियलाइज कीजिए कि नीड कितनी है, डिमांड है, और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। ये 2-3 चीजें आप दिमाग में रखिए, और फिर हाँ, कुछ भी उस पर वर्क करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करके मार्केट लेवल पे रिसर्च करना बहुत जरूरी है। हाउ मच हाँ, ये स्पेशल एंड इट्स जैसे बीइंग टेकन बाय अदर्स। जैसे अब आप एक मूवी देखो, गोलमाल है, गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, तो उन्होंने क्या एक सीक्वेंस, एक रिसर्च रखा। जब भी आप कोई रिसर्च करते तो ऐसा नहीं कि वो एंड हो, खत्म हो जाए, आपको उसके आगे कुछ छोड़ के रखना है, फिर उसके आगे रखना है। देखिए हम बार बार कहते हैं कि भाई अगर डनरफ कंपनी जो है डनरफ खत्म कर देगी, रूसी खत्म कर देगी, तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा? ऐसा नहीं होता है। लेकिन चीजें हैं, लेकिन बट चीजें रहेगा, करता रहेंगे, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, जब आप पेटेंट करते हैं या रिसर्च करते हैं, इट्स जस्ट लाइक मेकिंग द वॉल मतलब कि एक बार ईंटा पड़ेगा, फिर सीमेंट पड़ेगा, फिर ईंटा जाएगा, फिर सीमेंट पड़ेगा, तभी तो दीवार खड़ी होगी। अब तो काफी रिसर्च हो चुका है इनफैक्ट, बट जो हमने एरियाज दिखाया है आपको, उस पर काफी अभी बाकी है। तो आप तो सिर्फ आपको पेंट अलग अलग बदलना है, उसमें भाई कुछ गार्डनिंग का लगा दीजिए, कुछ और कर लीजिए। थैंक गॉड, मैं तो हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ जिसने मल्टी लेवल बिल्डिंग्स का कंसेप्ट लाया, नहीं तो पता चला कि पूरी पृथ्वी पे कहीं कुछ रह ही नहीं जाता इनफैक्ट। हाँ, ये चीज याद रखिए, सी आपका आइडिया हो सकता है, बट नेवर थिंक फॉर री इन्वेंटिंग द व्हील। आपको बार बार री इन्वेंट व्हील करने की जरूरत, नोबडी विल केयर फॉर दैट पर्टिकुलर आइडिया। आपको अलग कुछ उसमें ऐड करने की जरूरत है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है। नेक्स्ट, इन फ्यूचर नीड क्या है, क्रिएशन क्या है? फ्यूचर नीड है हमारे मेडिकल पे ज्यादा काम करना, कैंसर, बिकॉज सी लेट मी टेल यू अबाउट नाउ, दिस डेडली डिजीज इज गोइंग टू, मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आपको मैं एक चीज आइडिया बताना चाहूंगा, 80% और 90% ऑफ फंडिंग जो है हेल्थ साइंसेज में, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका जो है, वो NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो सिर्फ कैंसर के लिए फंडिंग कर रही है आज की डेट में, बिकॉज दिस पर्टिकुलर डिजीज इज गोइंग टू मेक अ हुप इन फैक्ट, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल थिंग, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर इन फैक्ट। तो इस पे काफी रिसर्च करने की जरूरत है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और सी मैं ये भी मैं कहना चाहता हूँ, कैंसर एज सच डिजीज नहीं है, इट्स एक इवॉल्व कर हमारा सेल है एक्चुअली। लेकिन अभी हम क्या है कि सोच नहीं पा रहे हैं, और
देखिए क्या है कि अगर नंबर ऑफ कैंसर केसेस देखा जाए 40 साल की उम्र तक कम रहता है, ठीक है। 40 के बाद एक्सपोनेंशियली कोई भी टाइप ऑफ कैंसर का सबसे डेडली कैंसर अगर इंडिया में देखा जाए तो लंग कैंसर है। ये देखने को मिला है कि 30-40% जिनको डायग्नोस हुआ है वो बेचारे मारे जाते हैं इससे, ठीक है। दैट्स टू बिकॉज अगर आप 20th सेंचुरी की बात करेंगे तो मेजर किलर अगर आप देखेंगे उस वक्त जो था दैट वाज बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक मेजर किलर अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लोग पृथ्वी पर मारे गए दैट इज बिकॉज ऑफ निमोनिया, उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस हुआ, उसके बाद कॉलरा और भी सब सारी चीजें। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एज एन कैंसर बायोलॉजिस्ट मैं कभी बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपने आप को बचा लेंगे। मेरी उम्र 45-46 साल, लेके अभी हम पूछे आप लोगों से कि भाई रोज 5 किलोमीटर चलते हैं तो कोई नहीं चलता होगा। मैं आपको चेंज करने की, बिकॉज अगर हम बात करें अपने ह्यूमन की बात करें, हम इवॉल्व किए अगर मान लीजिए कि 50,000 साल पहले इवॉल्व किए, तो हमारे जो जनरेशन जो थी 1 लाख से 50,000 या इतने साल तक हम काफी रोम करते थे, काफी एक्सरसाइज करते थे। एकाएक फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स हमने ये सब बंद कर दिया। तो ये चीजें एक्लेमेटाइज हो सकता है, एडेप्टेबिलिटी आएगी हमारे शरीर में, लेकिन अगर आप एकाएक कोई चीज चेंज होगा तो उसके प्रति क्या कहा जाए, देयर विल बी एजिटेशन अगेंस्ट दैट। तो बॉडी भी वही काम करती है। तो इसीलिए मैं आप लोग से यही कहूंगा कि हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज करिए, थिंक पॉजिटिव और लोगों को हेल्प करिए। बिलीव मी, आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ये तो सबसे अच्छा आइडिया दिया सर, जो आपने बात की, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब आप इनोवेशन करने निकलते हैं तो जब आप ये सोच के करेंगे कि दुनिया के लिए कुछ हमने कंट्रीब्यूट करना है तो इनोवेशन निखर कर ही आएगा। आइडिया आपका जरूर ग्रो करेगा और डेवलप करेगा। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट विल गिव स्ट्रेंथ टू योर आइडिया। और किसी को कुछ क्वेरी, और मैम मेरा फ़ोन नंबर है और ये इनको शेयर कर दीजिएगा कि जो बच्चे 11-12 जो भी लोग आए हैं, कभी भी कुछ क्वेरी हो मेरे से पूछे, मैं उनको हेल्प करूंगा। कुछ भी सोचिए नया, और हमेशा आप कॉन्फिडेंस रहिए। आपको ये नहीं करना है, सोचना है कि मैं ये चीज़ें कुछ है, कुछ नॉलेज है उसमें क्या आप एड ऑन करते हैं, दैट मैटर्स एक्चुअली। मैंने दिखाया नहीं, पेटेंट मेरे बहुत सारे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। मैडम ने कहा भी था थोड़ा सा, लेकिन मैं बेसिकली मैं ये टॉक इसलिए लिखा हूँ कि आपके अंदर वो जो जील है वो कि कुछ करना है वो जरूरी है, उसके बाद तो आप खुद कर लोगे। क्योंकि याद रखिए, कोई दवा तभी काम करती है, प्लीज याद रखिए, जब आप उस दवा पे विश्वास करते हैं। अगर जब आप विश्वास करोगे तभी काम करेगा। आपको कितना भी कुछ दे दिया जाए, प्लीज ये काम नहीं करेगा। एक मूवी है, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, आई यूज्ड टू वर्क, पता नहीं, छिछोरे मूवी देखा आप लोगों ने, सुशांत सिंह राजपूत की? किसी ने देखा है सुशांत सिंह राजपूत की? हाँ, मंजू जी ने। तो उसमें देखिए क्या बेसिकली क्या कहना चाहता है भाई, जब तक बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी तब तक तो आप दवा कोई काम ही नहीं करेगा। दवा दुआ दोनों काम करती है। मैं जानता हूं कुछ मेरे कुछ लोग हैं जो परिचित हैं जो कैंसर से प्रेरित है, बट उनको जीने की इच्छा है। तो जीने की जब आपको ये इच्छा होगी तो दे आर लिविंग नॉर्मल लाइफ, 10-15 साल जी रहे हैं। एक्चुअली देखने को मिलता है तो अक्सर नहीं होता है, लेकिन अगर आप दुनिया को सुंदर सोचेंगे, दुनिया के लिए कुछ करने की सोचेंगे, वो कब कर सकते हैं? जब आप अपना रिसर्च, कुछ नया इनोवेशन, नया स्टार्टअप, नया पेटेंट, तभी कुछ कर पाएंगे। बात तो सभी लोग करेंगे, लेकिन जब आप अपने आइडिया को इनकलकेट करके वो किसी ह्यूमैनिटी के काम में आ जाए तभी वो पेटेंट माना जाएगा। थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ क्वेरी है? मैम, हमें लगता है कि हमने काफ़ी समय ले लिया और होपफुली आप लोग सेटिस्फाइड है मेरे लेक्चर से, और आगे भी फिर देखा जाए 1-2 महीने बाद फिर कुछ ऐसा लेक्चर रहेगा तो मैं फिर आप लोगों को बताने में मुझे खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आई होप कि और कोई क्वेरी नहीं है हमारे। Yes, it was a very informative session, sir. We really enjoyed, and it was a learning for all of us. So we are really pleased to have you here with us, sir. And we are thankful and grateful to you that you spared your valuable time for this session. Thank you so much. I appreciate it. Thank you so much, and thanks to all the participants who have joined in. And thank you once again. Thank you all. I thank Director NCIDE. And, yeah, he is not with us today because of some urgency at his place. So
Otherwise, you would have definitely been Convey doing. my pranam and regards to him, ma'am, please. Thank you, sir. Thank you so much. Thank Thank you, you. thank Have a you. nice day.